What's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday. We had Sensex weekly expiry. Last जो हमारा weekly expiry था निफ्टी का था, and it was kind of a seller's paradise. So everyone was expecting a little bit of volatility in the Sensex expiry, and of course the expiry was volatile compared to the last couple of expiries because last दो expiries काफी smooth रहा था sellers के लिए, and today's expiry was a little volatile, but in all fairness it was quite easily manageable. So personally, I closed in 0.7% green today, and it was quite manageable expiry. Of course, towards the end of the day, 2 p.m. के बाद, of course, there were bit of gamma moves, call side and put side दोनों तरफ almost options double triple हो रहे थे. But till then, it was a fairly smooth expiry. The markets opened flat, and it was a slow and steady grind on the downside. And markets कहीं ना कहीं वो जो gap up होने के बाद जो range बनाया है, उसी के आसपास hover कर रहा है. And this is a very tricky scenario in my opinion, because news के कारण market एक बड़ा gap up तो दे दिया, but it is not even rejecting those higher prices and coming back into the lower levels, but at the same time it is not even reclaiming 26,000 levels. So looks like the market is waiting for some sort of a further clarity, and हमको भी थोड़ा बहुत साइडलाइंस में रहना पड़ेगा, and we have to wait and watch, and इस टाइम पे हमको aggressive positions लेना नहीं चाहिए. And today Sensex straddles opened at somewhere around 420 levels, and within the first 30-35 minutes almost 350-340 के आसपास आ गए थे. तो it was a decent initial crash, and बीच में almost 11 o'clock से लेके 1:30 के बीच में of course the straddle held its value, and also the markets also chopped a bit, but nonetheless, it was quite manageable expiry. On the commodities front, silver again got tanked almost 10% today, and the silver balls are trading at 150. So IVs जो है almost historically high levels पे trade कर रहा है. Remember back in 2020 during COVID, crude oil was trading in the negative territory, and we saw these kinds of IVs during that time. वहाँ से यहाँ तक almost ऐसे IVs कभी आए नहीं थे. Of course, in the US markets, there was this incident of GameStop. So during that incident also the GameStop walls had shot through the roof, and we are seeing a similar kind of an IV expansion on silver. So tomorrow is Friday, and next week Tuesday we have another Nifty weekly expiry, and the Nifty straddles are trading at 260 levels. तो बीच में थोड़ा spike आए थे, but again the people have gotten again complacent. लगता है लोगों को कि जो ये range बन रहा है वो range hold करेगा, but in my opinion, it is plain stupidity to be taking home naked straddles at this point. अगर आप iron flies लेके जा रहे हैं, iron condors लेके जा रहे हैं with limited risk on the downside and on the upside, then it makes a bit of sense, even though I would not prefer that during these kinds of uncertain times. But again, carrying naked straddles or naked strangle is pure stupidity in my opinion. And at the same time, the walls are also not justifying the kind of moves. So yes, market 3-4 दिन sideways रहेगा, काफी easy pita decay देगा, wall crash देगा, and लोगों को वापस अंदर entice करेगा, FOMO करेगा. But as traders, we should always trade by the merit. And in my opinion, though the premiums are slightly higher compared to the last couple of weeks, one should be avoiding positional trades at this point. Alright, so let's get to the terminal and let's see कल के फ्राइडे के लिए क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बन सकता है. सो डेली चार्ट पे अगेन मार्केट्स आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिटी. सिचुएशन इतना क्लियर नहीं है बिकॉज 1200 पॉइंट का गैप अप तो मिल गया, बट 26,000 प्लस लेवल्स को मार्केट्स ने काफी क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है, एंड 25,800 एंड 25,600 के बीच मार्केट्स कहीं ना कहीं होवर कर रहा है. तो यहाँ पे सीन लिटिल डाइसी हो जाता है बिकॉज इफ द मार्केट्स वर श्योर ऑफ समथिंग रियली पॉजिटिव देन 26,000 लेवल्स को रिक्लेम कर जानी चाहिए था. एंड अगर इफ मार्केट्स फेल्ट दैट दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर रिएक्शन, देन मार्केट्स को इस हायर लेवल्स को इमीडिएटली रिजेक्ट करके वापस 25,500 25,400 के आसपास आ जानी चाहिए था. सो यहाँ पे अगेन मार्केट्स थोड़ा सिचुएशन डाइसी होने वाला है, एंड यहाँ पे काफी बड़ा एक गैप भी नजर आ रहा है बिकॉज यहाँ पे भी एक काफी बड़ा गैप है, एंड यहाँ पे भी कम से कम ये गैप है. सो अंटिल अनलेस वी सी अ क्लोज बिलो 25,500 लेवल्स, तो मार्केट्स एक वेट एंड वॉच मोड में रहेगा. ईदर वी नीड टू गेट अ क्लोज अबाउट 26,000 टू इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ बुलिश स्ट्रक्चर, एंड और द डेली क्लोज बिलो 25,500 टू स्टार्ट initiating some sort of a bearish to sideways structure on a positional front. But daily scenario पे as of now I'm kind of clueless. I'm as clueless as you are. Generally कभी-कभी markets में ये phase आता है, you'll not find any trades and it's completely okay. Low time frame पे बात करें तो today was some sort of a slow grind. Markets ने कहीं ना कहीं flat खुला, and वहाँ से धीरे slow grind देखने को मिला. And yes, there were little bit of pullbacks, and especially expiry day का premiums के basis पे these pullbacks were quite deadly. मतलब manage कर सकते थे, but at the same time यहाँ पे जब markets में pullback आ रहा था, the call options were getting tripled and doubled. But at the same time कल का जो low था, तो उस लो को मार्केट्स ने आज तोड़ा नहीं. एंड सेंसेक्स की अगर वॉल्स की बात करें, 420 पे
ओपन हुआ एंड विद इन द फर्स्ट 30-35 मिनट्स द मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 300 के आसपास, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का एक क्रश दे दिया था. And after that, yes, the crush was constant, but at the same time, the markets were chopping. ये जो pullbacks आ रहे थे, counter trend pullbacks, they were a little hard to hold because यहाँ पे markets completely trend reversal कर सकता है या it's just a pullback, वो guess करना काफी impossible हो सकता है. But हमने price action basis पे हमने ये decide किए थे कि markets को कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए. यहाँ पे हम लोग डिसाइड किए थे कि विल बी लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न्स. तो अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूंगा तो यू कैन क्लियरली नोटिस दैट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया एंड यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया एंड सेकेंड टाइम भी यहाँ पे डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप बना के यहाँ पे ऊपर मूव किया था. तो इवन इफ यू हैड सोल्ड लेट्स से 83,200 और 83,300 पुट्स बेसिकली एट द मनी या वन स्ट्राइक OTM भी पुट्स अगर बेचते तो यहाँ पे काफी अच्छे प्राइस पे आपको मिल गया होता. एंड इवन दिस डाउन मूव दैट वुडंट हैव हर्ट बिकॉज मार्केट्स कहीं ना कहीं तो 83,300 के आसपास ही क्लोज किया है. तो 83,300 एंड ऑल द पुट्स बिलो देम दे एक्सपायर्ड वर्थलेस. सो एक्सपायरी में थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा कि लाइक थोड़ा ऑप्शंस प्रीमियम स्पाइक होने के बाद सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हम लोग थोड़ा पिकी बन के ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा अच्छा बनेगा. सेंसेक्स ऑल्सो डिडंट ब्रीच द यस्टरडेज लो. सो कल मार्केट्स क्या करेगा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा बिकॉज 3 दिनों से काफी छोटे रेंज में मार्केट्स ट्रेड कर रहा है एंड इवन द प्रीमियम्स हैव काइंड ऑफ लगता है कि लोग 2 या 3 दिन पहले का जो कांड हुआ था उसको भूल गए हैं एंड पीपल आर अगेन कमिंग एंड ऑब्वियसली शॉर्टिंग द प्रीमियम्स. तो देखना पड़ेगा कल कैसे होगा. तो टुमारो इज निफ्टीज ट्रेड because Nifty का 2DT बनता है कल and tomorrow's Nifty premiums are trading somewhere around 270. So if we don't gap down or if we do open flat then most probably 260 या 250 के आसपास कल हमको ओपन मिल जानी चाहिए. बट डोंट एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ क्रश टुमारो बिकॉज जनरली जब मार्केट्स इतना बड़ा गैप अप के साथ ओपन हुआ था एंड बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है देन पीपल विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल शॉर्टिंग द प्रीमियम्स एंड टेकिंग दोज ओवर द वीकेंड. सो फ्राइडे के दिन हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वी माइट इवन सी सम सॉर्ट ऑफ अ स्पाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे टुमारो. तो कल के लिए अगर इन शॉर्ट वॉल ट्रेड्स डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स मेरे लिए एक नो है. तो अगर ट्रेड करना ही है तो देन अगेन सेम थिंग जो कल हम डिस्कस किए थे सो सेम चीज आज भी लागू होने वाला है. तो यहाँ पे कल हमने जो चीज डिस्कस किए थे सेम चीज हम कल के लिए भी फॉलो करने वाला है बिकॉज टुमारो ऑल्सो विल बी ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स. इधर ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे या ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे. इस रेंज के बीच इवन दो आपको टीटाडीके मिल सकता है, वॉल क्रश मिल सकता है, आई वुड नॉट एडवाइज यू टू ट्रेड डेल्टा न्यूट्रल टुमारो. तो बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके 10 o'clock के पहले इस लो को अगर तोड़ देता है देन वी कैन ट्रेड द ब्रेकडाउन को हम ट्रेड कर सकते हैं. बट आई वुड प्रिफर द ट्रेडिंग द पुल बैक. तो मैं डायरेक्टली इस ब्रेकडाउन को मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं बिकॉज इफ यू नोटिस यहाँ पे काफी जल्दी एक बायर्स आ रहा है. तो अगर आप ब्रेकडाउन को ट्रेड करोगे तो इमीडिएटली मार्केट रिवर्स कर सकता है एंड विद इन 2 और 3 मिनट्स आपका स्टॉप लॉस ले सकता है. तो दैट इज वाई मैं वेट करूंगा पहले मार्केट्स को ब्रेकडाउन होने के लिए एंड देन वंस इट कम्स टू रीटेस्ट दिस लेवल देन उस रीटेस्ट पे मैं इनिशिएट करूंगा. वहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा बन जाएगा. सो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए मार्केट फ्लैट या विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज. तो बेसिकली 25,700 के अंदर मार्केट को खुलना चाहिए एंड देन यहाँ पे ब्रेकडाउन होना चाहिए. लेट्स से मार्केट यहाँ पे खुला 25,800 के आसपास या 25,750 के आसपास खुला एंड देन मार्केट्स ने ऑलमोस्ट एक 150 पॉइंट्स इंट्राडे में ट्रैवल कर दिया. तो देन आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी बिगड़ जाता है टू ट्रेड द ब्रेकडाउन. तो इन दैट सिनेरियो अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो देन आई वुड इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड आफ्टर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ कंफर्मेशन पैटर्न. क्या कंफर्मेशन पैटर्न है आपको अब तक ऑलरेडी पता हुई हो रहेगा. तो इधर इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप डबल बॉटम और सम सॉर्ट ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न और सम सॉर्ट ऑफ अ रेड ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल और सम सॉर्ट ऑफ एन लिक्विडिटी स्वीप ऑन द पुट्स के चेन पे. अगर लिक्विडिटी स्वीप आपको देखने को मिलता है तो वो चीज भी आप लोग यूज करके यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं. बट अगेन स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए. मार्केट्स अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो लेट्स नॉट होप, लेट्स डोंट ट्राई टू रिपेयर द पोजीशंस. जनरली एक्सपायरी डे पे मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका पोजीशन आपके अगेंस्ट भी जा रहा होता है तो देन यू कैन रिपेयर एंड यू कैन सैल्वेज समथिंग बैक. बट ऑन द नॉन एक्सपायरी डेज चीजें काफी मुश्किल हो जाता है. वहां पे आपका साइज बहुत जल्दी कंपाउंड हो जाता है एंड आपका जो लॉसेस है आपका कंट्रोल बाहर बहुत जल्दी जा सकता है एंड आप गेस भी नहीं कर सकते कि प्रीमियम कब कितने पे क्लोज होने वाला है. बिकॉज फ्राइडे है, हो सकता है कि 250 पे कल खुले बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बाय द एंड ऑफ द डे दिस 250 रुपीज का प्रीमियम माइट बी क्लोजिंग एट 280. तो यहाँ पे आपको दो फ्रंट पे आपका लॉस होता रहेगा. वन इज आईवी फ्रंट पे भी आपका लॉस होता रहेगा एंड आपका जो ट्रेड का जो डेल्टा डायरेक्शन जो गलत हुआ उसके तौर पे भी आपको लॉस होता रहेगा. सो दैट इज वाई आई वुड नॉट प्रिफर फायर फाइटिंग. तो आपको सिंपल
एंट्री एंड एग्जिट, हिट और मिस काइंड ऑफ अ ट्रेड्स लेना पड़ेगा, बट वेट फॉर द मार्केट्स टू कम नियर योर लेवल्स। अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल के नीचे आता है तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है यहाँ पे पैटर्न्स लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट या 3 मिनट पैटर्न्स पे हमको एक मीन रिवर्शन ट्रेड लेना है। बट अगर मार्केट्स गैप अप खुल के यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेवल्स पे नहीं, अगेन पैटर्न्स के बाद ही मैं मीन रिवर्शन ट्रेड लेने को ट्राई करूंगा, बिकॉज टुमारो अगेन देर इज नो स्कोप ऑफ सैल्वेजिंग योर पोजीशंस। अगर आपका पोजीशंस आपके अगेंस्ट जाता है तो 100% आपके अगेंस्ट जाने वाला है, एंड उसको रिपेयर करने के लिए काफी कम प्रोबेबिलिटी मिलता है, कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो वेट फॉर द मार्केट्स टू कम नियर दीज लेवल्स। 850 लेवल्स के आसपास आता है तो एक 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ हम लोग शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं। एंड अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लो को तोड़ता है तो देन वी हैव टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, बेसिकली ब्रेक डाउन ट्रेड्स को, बेसिकली रीटेस्ट ट्रेड को हमको करना है। बट अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के देन इस लेवल के आसपास आएगा, देन वी शुड इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड आफ्टर वेटिंग फॉर सम पैटर्न confirmation on the lower time frame. Apart from this, don't try to force your trades, don't try to pick your trades without them offering themselves to you. तो यहाँ पे होता है कि let's say 2 दिन से अगर आपका कोई ट्रेड नहीं मिला होगा या 2 दिन से आपका कुछ लॉस हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली हमारे मन में रहता है कि ओ आज मुझे रिकवर करना है। आज वो गलती मत करो। जब तक मार्केट्स आपके लेवल के आसपास नहीं आएगा, जब तक मार्केट्स आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, there is no need to go and pick the battles which you are not ready for. All right, I'll see you again tomorrow after the markets day, and till then take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.